Hello students, today I am going to continue accounting equation. Okay, so in this accounting equation we have to start and we have to remember some important tips and tricks. So first tips is all business transactions, you write in your copy, all business transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of business and not from the point of view of businessmen. Okay, so I highlight that point of view of business, not from the point of view of businessmen. हम लोग हमेशा ये चीज़ याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो students must follow the business entity concept, okay, while preparing accounting equation. Okay, while preparing accounting equation. Next, accounting equation should be equal after each and every transactions. You should remember that thing. Accounting equation मेरे साथ साथ तुम लोग भी कॉपी में उठाते रहो. Accounting equation should be equal after each and every transaction. Okay, next one is deduct. Here deduct means minus. Okay, deduct all expenses and losses from the capital. Five number, all income and gains, always remember that thing. Add means plus all income and gains to the capital. Okay, next point number 6, cash paid for expenses. Cash paid for expenses of next year will affect assets only. Okay,
interest on capital, interest on capital and interest on drawings and interest on drawings, on interest on drawings will affect capital only, Its number is cash received against a bills receivable will affect asset only. Okay. Nine number. Goods, assets, cash, etc. withdraw for personal use or for charity, etc. will affect both asset and liabilities. Okay, you must remember the things. So now we discuss one by one. Here first one is all business transactions are recorded in the books of accounts from the point of view of business, not from the point of view of businessman. So हमेशा याद रखना कि हम लोग जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, हम लोग बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करेंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट मस्ट follow the business entity concept while preparing accounting equation. Here business entity concept, we already know that business and that person, that is Ram. सोचो कि राम ना लिख के इसको हम लोग लिखते रतन टाटा and Tata Group. That business and that person both are separate entity. यानी अंडर लॉ ये भी एक नाम है और ये भी एक नाम है. अंडर लॉ इसको भी महत्व जितना देगा इसको भी महत्व इतना ही देना पड़ेगा. अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर तुम लोग कोई भी कार खरीदोगे टाटा कंपनी से, सोचो कि टाटा नेक्सन तुमने खरीदा. खरीदने के बाद उस नेक्सन का अगर कोई भी इंजन का कोई प्रॉब्लम इशू आया, उस समय तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग जाके रतन टाटा को नहीं बोलोगे, कि मेरा कार खराब हो गया. तुम जाके डायरेक्टली टाटा ग्रुप यानी टाटा सर्विस सेंटर को जाके बोलोगे कि मेरा कार खराब हो गया, अभी तुम लोग इसको ठीक करके दो. अगर टाटा ग्रुप और टाटा जो सर्विस सेंटर है वो अगर बोलेगा कि हम लोग ये ठीक नहीं कर सकते, उस समय तुम अगर ये सोचोगे मैं केस ठोकूंगा टाटा कंपनी के ऊपर, तभी तुम रतन टाटा के ऊपर केस नहीं ठोकोगे, तुम डायरेक्टली केस ठोकोगे टाटा कंपनी के ऊपर. So that's why this is a legal entity and both are separate entity. यानी दोनों का ही नाम बिजनेस में है, मगर टाटा का जितना महत्व है रतन टाटा का भी उतना महत्व रहता है बिजनेस में. That's why it is called separate entity and entity concept. Entity concept इधर से ही शुरू हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? एंटिटी कॉन्सेप्ट. याद रखना वो चीज़. देखो अभी मैंने जो बोला
कि स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट while preparing accounting equation. Okay, next point is accounting equation should be equal after each and every transaction. Equal means what? देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या रहता है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है जो तुम लोगों के साथ मैंने बात किया था पहले क्लास में. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसा रहता है. यानी एसेट का जो वैल्यू है, लाइबिलिटीज का वैल्यू और कैपिटल का वैल्यू दोनों को मिला के जितना होगा उसका इक्वलेशन एसेट का वैल्यू है. एक एग्जांपल लूँ, एसेट का वैल्यू सोचो कि 10 है, लाइबिलिटीज़ का है 7 और कैपिटल का है 3. तो क्या हुआ, और 10 इज इक्वल टू 10, यानी लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल कितना हुआ, एल प्लस सी कितना हुआ 10, और एसेट कितना हुआ, एसेट कितना हुआ, एसेट हुआ 10. तो एल प्लस सी इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टू एसेट. हम लोगों का इक्वेशन इक्वल रहा. यानी ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये अकाउंटिंग इक्वेशन शुड बी इक्वल आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज डिडक्ट. डिडक्ट मीन्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इसको याद रखो, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस फ्रॉम द कैपिटल. यानी हम लोग जो कैपिटल लिखा ना, वो कैपिटल, ये जो कैपिटल है, इससे हम लोग ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे. ओके, माइनस करेंगे ये चीज़ हमेशा. यानी अगर एक्सपेंसेस 1 रहा तो 3 - 1 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 लिखेंगे. ये छोड़ दो कि ये इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको छोड़ो. मगर मैं क्या बोल रहा हूँ इसको देखो, 3 - 1 यानी 2 लिखेंगे अगर 1 रुपीज़ एक्सपेंसेस है तो. ओके, पॉइंट नंबर 4 चला गया. इसके बाद एड ऑल इनकम एंड गेन्स टू द कैपिटल. वाइस वर्सा, इफ इट इज एन इनकम एंड गेन, इफ इट इज एन इनकम प्लस गेन, इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे. किसके साथ ऐड करेंगे, हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करेंगे. ओके, सो अभी देखो 5 नंबर भी चला गया. नेक्स्ट 6 नंबर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस फॉर नेक्स्ट ईयर विल अफेक्ट एसेट्स ओनली. ये एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना. कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर विल अफेक्ट एसेट्स ओनली. एसेट को अफेक्ट करेगा ये चीज़. नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल अफेक्ट द कैपिटल ओनली. वाइस वर्सा वही केस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. वाइस वर्सा वही केस, इनकम एंड गेन. ओके, इनकम एंड गेन, ये दोनों केस में जो हुआ था वैसे ही अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो इसके ऊपर भी इफेक्ट होगा. किसके साथ, कैपिटल के साथ. नेक्स्ट पॉइंट इज कैश रिसिप्ट अगेंस्ट ए बिल्स रिसीवेबल विल अफेक्ट एसेट्स ओनली. मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, कैश रिसिप्ट अगेंस्ट ए बिल रिसीवेबल विल अफेक्ट एसेट्स ओनली. बिल्स रिसीवेबल क्या है और कैश रिसिप्ट तो तुम लोग जानती ही हो. ये बिल्स रिसीवेबल के बारे में मैं बात करूँगा अपने नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स ऑब्लिक एसेट ऑब्लिक कैश एक्सेट्रा विथड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज फॉर द चैरिटी और एक्सेट्रा विल अफेक्ट बोथ एसेट एंड लाइबिलिटीज. ये गुड्स एसेट अगर ये होगा तो ठीक है. तो ये हुआ हम लोगों का बात. अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने इफेक्ट को. देखते हैं एक चीज़. अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स के साथ चलते हैं. नेक्स्ट दिन हम लोग प्रैक्टिकल को देखेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ एसेट के आइटम्स के साथ जाते हैं. आज का क्लास रहेगा ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स. क्या क्या आइटम्स के ऊपर ट्रीटमेंट रहता है. फर्स्ट आइटम्स इज ट्रीटमेंट ऑफ expenses paid. Treatment of expenses paid. Here expenses paid, अभी उसका सॉल्यूशन को देखेंगे हम लोग. expenses paid में बोल रहा हूँ. expenses यानी खर्चा पाती, वो अगर पेड करेंगे ऑब्वियसली इसका 2 ट्रांजेक्शन होगा. ये क्या करेगा, डिक्रीज. अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं,
डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैपिटल, यानी कैश को भी माइनस कर रहा है, कैपिटल को भी माइनस कर रहा है। ठीक है, अगर ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस हुआ तो। नाउ पॉइंट नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ इनकम। ओके, सो इसका भी दो तरीके का होगा। इनकम रिसिप्ट, अगर इनकम रिसिप्ट होगा उस समय क्या होगा, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। हमने जो आज ये जो पॉइंट बोला था, पॉइंट नंबर था 5, एड इनकम एंड गेन्स टू द कैपिटल, एड इनकम एंड गेन्स टू द कैपिटल। अभी इन कैपिटल के साथ हम लोगों ने इंक्रीज हुआ मीन्स प्लस कैश वैल्यू भी तो इंक्रीज हुआ ना। अगर इनकम होगा तो तुम्हारा तो कैश बॉक्स में कैश का जो अमाउंट है वो भी तो प्लस हो जाएगा। इनकम यानी प्रॉफिट अगर होगा तो कैश बॉक्स में तो वो भी प्लस हो जाएगा ना। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, लिखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स, ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स। ओके, हम लोग जानते हैं ड्राइंग्स क्या है। अगर कोई भी बिजनेस से कोई भी ओनर अगर वो पैसा टेम्पररी बेसिस में लेता है उसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, बिजनेस में से कोई भी पैसा टेम्पररी बेसिस में ओनर लेता है उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। मैंने एक एग्जांपल तुम लोगों के साथ शेयर किया था। सोचो कि मिस्टर राम है जिसका एक बिजनेस है। अभी मिस्टर एक राम का एक फ्रेंड है विराट। ओके, राम क्या किया, राम विराट के घर में जाएगा, उसका बर्थडे है आज। सोचो कि आज बर्थडे है, रात को 9 बज गया। राम के पास जो मनी में जो पैसा है वो बहुत ही कम है। विराट के घर में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट 1000 का एक तुम गिफ्ट लेके जाओगे। राम गिफ्ट लेके जाएगा, तो इसके लिए राम ने क्या किया, बिजनेस से राम के पास 200 रुपीज़ था, बिजनेस से वो राम 800 रुपीज़ उधार लिया। ठीक है, राम ने बिजनेस से 800 रुपीज़ उधार लिया फॉर टेम्पोररी बेसिस। कल आने के बाद घर बिजनेस में आने के बाद वो 800 रुपीज़ फिर से वो कैश बॉक्स में दे देगा। इसको हम लोग बोलेंगे, उस 800 को बोलेंगे हम लोग ड्राइंग्स, जो क्या है टेम्पररी बेसिस में है। ये बिजनेस से लोन की तरह छोटा लोन सोचो कि ये बिजनेस के टेम्पररी बेसिस में ले रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम में पड़ गया इसलिए वो लेना पड़ा 800 रुपीज़। नेक्स्ट दिन आके वो राम क्या करेगा, वो 800 रुपीज़ फिर से उस कैश बॉक्स में दे देगा। अभी उस ड्राइंग्स अगर होगा, अगर बिजनेस में ये ड्राइंग्स अगर होगा तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं इसको। रुको, कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ऐसे। इसका 2 पार्ट होगा। एक होगा सोचो कि डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीजेस इन कैपिटल, यानी एसेट भी माइनस हो रहा है, कैपिटल भी माइनस हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ याद रखना, ये कैपिटल को कैपिटल से माइनस होगा और एसेट का वैल्यू भी माइनस। एसेट यानी हमेशा याद रखना है कैश का वैल्यू बोल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैश इट्स वन काइंड ऑफ एन एसेट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज 5 नंबर, परचेज गुड्स, सॉरी इसको ठीक तरीके से लिख लो, ऑफ गुड्स इन कैश। ओके, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश। इसको हम लोग 2 तरीके से डिवाइड करेंगे। अगर कैश से कोई भी गुड्स परचेज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा कैश वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, यानी माइनस हो रहा है कैश वैल्यू, और तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है एसेट, यानी एसेट प्लस हो रहा है।
अगर परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली वो परचेज वाला गुड्स जो है वो बिजनेस में आएगा, यानी बिजनेस में एंट्री करेगा, तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन एसेट हुआ ना। अभी कैश से परचेज कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जितना कैश है उसका वैल्यू तो कम हो जाएगा कैश में परचेज अगर करेगा तो, सिंपल बात, ठीक है। सो ये परचेज ऑफ गुड्स इन कैश का मतलब यही है, ऐसे हम लोग प्लस माइनस को सोचेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये 5 नंबर गया, 6 नंबर, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। सो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ओके, इसका एंट्री कैसे होगा? परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, मैं क्रेडिट बोल रहा हूँ, यानी ये बाकी में परचेज किया है, तो ऑब्वियसली अगर गुड्स परचेज किया है तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन एसेट होगा। एसेट तो इंक्रीज हो रहा है ना, अभी उधारी में वो चीज़ खरीदा, सो ऑब्वियसली उधार यानी हम लोगों का क्या है, लाइबिलिटीज है। हम लोग जानते हैं, वो पिछली क्लास में हम लोगों का हो गया है वो चीज़, जो क्लास हुआ था। सो इंक्रीज, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इन लाइबिलिटीज। ओके, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज यानी एसेट भी प्लस हो रहा है, लाइबिलिटीज भी प्लस हो रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड इन कैश, इसको क्या करेंगे, सोल्ड हुआ है किसमें, कैश के द्वारा। अगर सोल्ड हुआ है तो तभी क्या होगा, इंक्रीज इन कैश, यानी कैश प्लस हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली डिक्रीज इन एसेट। अगर गुड्स सोल्ड हो रहे हैं तो गुड्स तो तुम्हारे घर से जा रहा है ना, सो एसेट माइनस हो रहा है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी इस बार बाकी में खरीदा। हम लोग जानते हैं बाकी यानी लाइबिलिटीज, तो क्या होगा, उसका एंट्री ऐसे होगा, इंक्रीज इन एसेट, यानी कैश इंक्रीज हो रहा है, सोल्ड हुआ है ना तो पैसा आएगा। अगर कुछ भी सोल्ड करोगे तो पैसा आएगा ना तुम्हारे घर में, तो ऑब्वियसली क्रेडिट में हुआ है, गुड सोल्ड हुआ है क्रेडिट में, तो पैसा यानी सोचो, ये इस जगह में मैं बोल देता हूँ, ये पैसा कैसे आएगा, ये पैसा डेटर्स के द्वारा आएगा। डेटर्स कौन है, मैंने क्या बोला था याद है कि अगर कोई भी चीज़ सेल करोगे, तुम सेल कर रहे हो, उस समय वो आदमी पैसा नहीं दिया, कैश में तुमने नहीं सेल किया, तो ऑब्वियसली उस आदमी का नाम आएगा। दुकान में जाके तुम लोग अगर कोई भी चीज़ खरीदोगे, सोचो कि तुमने आज शाम को जाके एक चीज़ तुमने खरीदा, खरीदने के बाद तुमने ये चीज़ बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं, पापा आके तुम्हारा दुकानदार का पैसा दे देगा। दुकानदार ने बोला तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुमने बोला ये है, नाम बोलने के बाद दुकानदार ने वो नाम लिख लिया, नाम के साइड में वो पैसा भी लिख लिया जितना देने वाला हो तुम, यानी तुम्हारे पापा। तो ऑब्वियसली दुकानदार ने अगर कैश में वो चीज़ सेल किया होता तुम्हारे पास, तो वो दुकानदार तुम्हारा नाम नहीं लिखता और तुम्हारा पापा का नाम नहीं लिखता। मगर वो ट्रांजैक्शन कैश में ना होकर क्रेडिट में हुआ है, दैट्स वाई उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलेंगे और उसका नाम आएगा बिजनेस में। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। इसलिए ये क्रेडिट यानी एसेट डिक्रीजिंग, इंक्रीज इन एसेट का मतलब है डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेटर्स एक एसेट है। साइड बाय साइड डिक्रीज इन एसेट भी हो रहा है, कैसे, वो गुड्स अगर सोल्ड हो रहा है तो गुड्स तुम्हारे घर से जा रहा है, यानी एक साइड में प्लस हो रहा है एसेट और एक साइड में गुड्स जा रहा है। ओके, सो ये हो गया हम लोग का इम्पोर्टेंट कुछ। सो अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी।
देखो ये क्वेश्चन है, इसको उठाओ, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आज। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹2500, इसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000, इसके बाद सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹1800, कॉस्टिंग वैल्यू ₹1500। इसको सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को ये टेक्निक जानना पड़ेगा। अगर कोई भी बिजनेस शुरू हो रहा है कैश के द्वारा, यानी 25,000, यानी मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 25,000, उस समय क्या करेंगे हम लोग, उस समय वो इक्वेशन बनाएंगे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये शुरू करने से पहले ये बना देंगे हम लोग। पहला ट्रांजैक्शन क्या था, मोहन स्टार्टेड, नेक्स्ट दिन इसको ठीक तरीके से हम लोग करेंगे। आज सिर्फ बेसिक बात है, बिजनेस, इसको एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को साथ हम लोग जाएंगे, बिजनेस विथ कैश, यानी एसेट के अंदर कैश लिखेंगे, लाइबिलिटीज तो उसमें क्रिएट नहीं हो रहा है, यानी लाइबिलिटीज 0 है, प्लस कैपिटल में कुछ क्रिएट हो रहा है जो है वैल्यू है 25,000 कैश के द्वारा ये बिजनेस शुरू हो रहा है। अच्छी तरह से देखो, ये जो 25,000 है और ये 25,000, इसका वैल्यू कितना हुआ, 25,000 इज इक्वल टू 25,000, यानी दोनों साइड सेम है, यानी एसेट साइड और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये साइड को प्लस करेंगे और बीच में ये इक्वल है, तो दोनों साइड सेम हुआ ना। सेम तरीके से 2 नंबर करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000, 2 नंबर परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000। ये सोहन का नाम आया है, परचेज गुड्स फॉर कैश नहीं बोला है, सोहन का नाम आया है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कैश नाम इसमें लिखा नहीं होगा, 2 नंबर को अच्छी तरह से देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन लिखा है, कैश के बारे में कुछ बोला नहीं, यानी ये जो परचेज किया है सोहन से 10,000 का चीज़, वो 10,000 क्रेडिट में हुआ है। मैंने कैसे समझा, बिकॉज इसमें कैश का कोई बात उसमें लिखा नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का एसेट पहले क्या था, कैश, इसके तरह अभी गुड्स यानी स्टॉक ऐड करेंगे। ये कैसे हो रहा है, ये तुम लोग बुक में है, बुक में अच्छी तरह से देख लेना, दिव्य शर्मा बोलो, एनसीईआरटी बोलो, दोनों बुक में है। कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन ₹10,000, यानी तुम्हारा लाइबिलिटीज में क्रेडिटर अभी यार ऐड हो रहा है, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइबिलिटीज में तुम्हारा क्या ऐड हो रहा है, क्रेडिटर्स। किस लिए क्रेडिटर्स, मैं अभी बोलूँगा। कहाँ से मैं खरीद रहा हूँ, कहाँ से खरीद रहा हूँ, वो चीज़ सोहन के पास से खरीद रहा हूँ। वैल्यू कितना है, वैल्यू है 10,000, यानी मेरा 10,000 रुपीज़ $25,000 था कैश, ये देखो अच्छी तरह से, ये देख लो एक बार, कैश में 25,000 था, इसके साथ प्लस करेंगे, अभी नया ऐड हुआ है स्टॉक 10,000 का, ठीक है। स्टॉक मैंने क्या बोला, स्टॉक अगर है तो उसको हम लोग, और सॉरी गुड्स है, इसको हम लोग स्टॉक के साथ ऐड करेंगे। लाइबिलिटीज पहले 0 था, अभी ऐड हुआ है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन 10,000, इसके साथ 25,000 तो पहले ही था। सो अभी इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन हुआ 35,000 इज इक्वल टू 35,000, 10,000 प्लस 25,000, तो इक्वेशन तो सेम हुआ। अभी 2 नंबर चला गया, अभी 3 नंबर के लिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹1800, कॉस्टिंग वैल्यू 1500। ये कॉस्टिंग वैल्यू क्या है, कॉस्टिंग वैल्यू मीन्स योर परचेज वैल्यू, मीन्स बिजनेस परचेज वैल्यू। इसका वैल्यू कितना था, वैल्यू था 1500। अभी सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है 1800। मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ तो फिर आसान नहीं होगा। कॉस्ट वैल्यू 1500। अच्छी तरह से देखो, कॉस्ट वैल्यू तुम्हारा खुद का प्राइस है,
तुमने सेल किया कितने में, तुमने सेल किया 1800 में, तो ऑब्वियसली अगर सेल वैल्यू से कॉस्ट वैल्यू कम है तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ना, बाकी वैल्यू 300 रुपीज़। अच्छी तरह से याद रखो, सेल वैल्यू है तुम्हारा 1800, यानी तुमने कुछ चीज़ 1500 से खरीद के वो 1800 में सेल किया तो तुम्हारा 300 प्रॉफिट हुआ ना। वो चीज़ इसमें लिखा है सोल्ड गुड्स टू रुपीज़ 1800, उसका कॉस्टिंग 1500। इसमें क्या होगा, इसमें 3 एंट्री होगा। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट में क्या क्या था इससे पहले, एसेट में था स्टॉक और कैश, कैश प्लस स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ओके, अभी कॉस्ट प्राइस, अभी कुछ चीज़ सेल करने के बाद वो पैसा किसके पास आता है, कैश में हिट करता है। यानी 1800 का प्राइस तुम्हारे पास आया, तुम्हारा स्टॉक से कितना पैसा गया, 1500 गया, ठीक है ना, 1500 गया। देखो मैं कैश में कितना था पहले, 25,000। अच्छा इसको एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो ये प्रॉब्लम होगा। पहले लिख लेते, पहले क्या था 25,000 प्लस स्टॉक में कितना था 10,000 प्लस क्रेडिटर में कितना था 10,000 प्लस कैपिटल में कितना था 25,000। और ट्रांजैक्शन क्या है, ये कॉस्ट प्राइस से तुमने खरीदा था, अभी तुमने सेल किया 1800 से, तो तुम्हारा कैश में 25,000 प्लस 1800 होगा। तुम्हारा तो पास कैश आया ना अभी तुम्हारा स्टॉक से कितना स्टॉक चला गया, 1500 का स्टॉक चला गया। सो तुम्हारा लायबिलिटीज कितना रहा, 10,000 ही है। कैपिटल में कितना आएगा, कैपिटल के साथ 25,000 के साथ हम लोग प्लस करेंगे 300। ये प्लस हमने क्या किस लिए किया, ये जो मैंने थ्योरी लिखाया था, टिप्स दिया था तुम लोगों को, टिप्स एंड ट्रिक्स, उसमें देखो लिखा है एड ऑल इनकम एंड गेन्स टू द कैपिटल। यानी ये जो कैपिटल है, कैपिटल के साथ हम लोगों ने 300 रुपीज़ ऐड किया, टोटल कितना आया 26,800 प्लस 8,500 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 25,300। ठीक है, ये है हम लोग का इक्वेशन। अभी देखते हैं इसका इक्वल होता है या नहीं होता है। 26,800 देखते हैं, 26,800 इसके बाद 8,500 0 0, हाँ 8,500 0 0 3 15 3 यानी 35,300 इस साइड में, हाँ मिल गया। और 35,300 इजिकल टू, इसको ऐड करो 35,300, यानी हमेशा एसेट इजिकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा। तो ये भी प्रूफ हो गया इस क्वेश्चन में। मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, एक नंबर को मैंने पहले सॉल्व किया, इसके बाद एक नंबर का जो 25,000 और 25,000 आया, उससे पहले उस कैश को लिखा मैंने, इसके साथ मैंने ऐड किया स्टॉक इस 2 नंबर में, क्रेडिटर्स भी ऐड हुआ और कैपिटल तो पहले ही था। इसके साथ मैंने क्या किया, पहले उसको लिखा जो 2 नंबर ट्रांजेक्शन था मेरे पास, उसको लिखा, उसके साथ नया क्या ऐड हुआ 1800, 1500 माइनस हुआ 300 ऐड हुआ। तो इसको हम लोगों ने देखा और हम लोग जानते हैं एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसलिए वो ट्रांजेक्शन हम लोग का सही है। तो ये चीज़ याद रखना, नेक्स्ट दिन में एक बड़ा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही।